morning students. Today I will teach you chapter 7, Getting to Know Plants. Now all of you open your science and NCERT and open page number 54. Now we have discussed in our last class till the types of plants. Now we will discuss about the parts of a plant. So first of all we will discuss it about stem. Now 7.2 stem. Observe closely the stems of different plants around you. Note down different structures, parts borne by the stem. Compare your observations with that of your friends. What do you find? Stems bear leaves, branches, buds, flowers and fruits. Now, what is a stem? Stem is an important part of a plant. It helps to transport the food, water and minerals from one place to another. Or we can say that stem helps to transport the water, mineral and food from one part of a plant to another plant. Now, as we know that there are different types of plants around us, and different types of plants also have different types of stem. Some plants are having soft stem and some have hard stem. Now see activity number 2. We would require a glass, water, red or blue ink and a soft stem. Pour water to fill 1/3 of the glass. Add a few drops of red or blue ink to the water. Cut the base of the stem and put it in the glass as shown in figure 7.6. Now in this what we have to do? We have to take a glass of water and in that we have to add a blue ink or a red ink. या तो हम उसमें रेड इंक ऐड ऑन करें या फिर ब्लू इंक, और एक सॉफ्ट स्टेम लेनी है. सॉफ्ट स्टेम लेनी है तो वी कैन टेक एन स्टेम ऑफ अ बल्सम ट्री, बिकॉज जो बल्सम ट्री होती है उसकी स्टेम्स सॉफ्ट होती हैं. नाउ तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू कट द बेस. जो स्टेम की जो है उसका हमें बेस कट कर देना है, मीन्स हमें रूट्स को कट कर देना है. और स्टेम को हमें, जो ग्लास ऑफ वाटर हमने लिया था, एक कलर्ड वाटर जो था रेड कलर और ब्लू कलर्ड वाटर, हमें उस स्टेम को उस ग्लास में पुट कर देना है, प्लेस कर देना है. देन ऑब्जर्व द सेटअप. डज द कलर अपीयर इन द स्टेम? यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेस इन द स्टेम इफ दिस इज kept for a longer period. The color appears in the veins of leaves also. How do you think the color reached there? Now, after some time what you will observe? You will observe that the color of a stem, जो stem का जो color है वो change होने लगा, और जो colored water था वो धीरे धीरे stem के through rise up होने लगा. और अगर हम लोग उस स्टेम को बहुत लॉन्गर पीरियड के लिए रख देते हैं तो क्या होगा? जो लीफ की जो वेन्स होती हैं, जो मिडरिब होता है, और जो लीफ की जो वेन्स होती हैं उसका कलर चेंज होने लगता है. Now see on page number 50. Now from this activity we see that the stem helps in upward movement of water. The water and minerals go to leaves and plant parts attached to the stem. तो ये एक्टिविटी हमें क्या प्रूव कर रही है? दिस प्रूव्स दैट जो स्टेम होती है वो हेल्प करती है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर में. वाटर का जो अपवर्ड मूवमेंट होता है उसमें हेल्प करती है. जैसे प्लांट्स में क्या होता है, जो रूट्स होती हैं वो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद स्टेम की हेल्प से जो वाटर होता है वो सारे जितना पार्ट्स, प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में जो है कैरी आउट होता है. मीन्स कि जो स्टेम होती है वो हेल्प करती है वाटर को कैरी आउट करने में. देन 7.3 लीफ. ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक. All
Are all the leaves of same size, shape and color? Now, हमारे आसपास बहुत सारे plants हैं, different types of plants हैं, जिसमें different types of leaves भी होती हैं. तो what we have to do, ये क्या कह रहा है कि उन सारी leaves को, जो different types की leaves हैं, उनको collect करो और फिर उसको अपनी notebook में draw करो और ये observe करना है कि क्या सारी leaves same size, shape और color की होती है. Because leaves have different size and shape and color also. Some are big in size, some are smaller in size, some are of brown color, some are of red color, some are of green or red color, some are of green color. That's why leaves are different. They have different shape, size and color. How are leaves attached to the stem? The part of the leaf by which it is attached to the stem is called petiole. Now, अब जो leaf होती है वो stem से कैसे attach होती है? Leaf की एक, हमने हमेशा leaf देखी होगी, आप लोग ने भी देखी होगी. तो leaf कैसी होती है? leaf के बाद एक पतली सी, we can say कि पतली सी डंडी टाइप में होती है और जिसको हम लोग पेटियोल बोलते हैं. तो जो पेटियोल होता है वो स्टेम को और लीफ को अटैच रखता है. यू कैन सी इन फिगर 7.8, उसमें देख सकते हो आप लोग की जो लीफ है उससे फिर एक लंबी सी एक छोटी सी लाइन ड्रॉ हुई है जिसको हम लोग पेटियोल कहते हैं, जो कि स्टेम से लीफ को अटैच कर रही होती है. देन द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना. और जो लीफ का जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है उसको हम लोग लैमिना कहते हैं. फिगर 7.8 में ये भी चीज बिल्कुल बहुत ही क्लियर है. देन कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू? डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल्स? ये चीजें आप हमारे पास जितने भी प्लांट्स हैं उन सब की लीव्स में हम लोग ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं. और क्या सारे प्लांट्स के पास पेटियोल्स होते हैं? क्या सारी लीव्स के पास पेटियोल्स होता है? यस, दे ऑल हैव पेटियोल्स, बिकॉज जितने भी लीव्स हैं वो विदाउट पेटियोल्स किसी भी स्टेम से अटैच नहीं हो सकती. ओके, आफ्टर दैट let us get to know the leaf better by taking its impression. If you thought that leaves cannot sign, here is an activity which will make you think again. अब लीफ को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लीफ का इम्प्रेशन लेते हैं. जैसे कि फिगर 7.9 में दिखा रहा है, ऐसे ही हम लोग जब हम लोग स्मॉल थे, किड थे, तो हम लोग क्या करते थे, कॉइन का इम्प्रेशन लेते थे पेपर पे. क्या करते थे, कॉइन रखते थे, उसके ऊपर पेपर रखते थे और इसी तरह से हम लोग स्क्रिबिंग करते थे जैसे फिगर 7.9 में दिख रही है. तो क्या होता था, कॉइन का पूरा शेप इम्बोज हो जाता था, उसका इम्प्रेशन पूरा पेपर पर आ जाता था. नाउ एक्टिविटी 3, पुट अ लीफ अंडर अ white sheet of paper or a sheet in your notebook. Hold it in place as shown in figure 7.9. Hold your pencil tip sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below it. Did you get an impression with some lines in it? Are they similar to those on the leaf? Now, हमें क्या करना है, इसमें हमें एक वाइट पेपर लेना है और लीफ लेनी है. हमने एक वाइट पेपर लिया, उसके नीचे लीफ को रखा और फिर पेंसिल से हमने स्क्रिबिंग करना शुरू कर दी. मीन्स पेंसिल की टिप को हमने जितने पेपर के जितने पोर्शन पे नीचे लीफ थी वहां पे हमने रबिंग करना, पेंसिल से हमने रब करना स्टार्ट कर दिया. तो फिर क्या हुआ कि पेपर पे सारा पूरा का पूरा इम्प्रेशन लीफ का आ गया. देन दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स. अब जो लीफ पे जो लाइंस बनी होती हैं डार्क ग्रीन कलर की, मैंने लाइव क्लास में भी तुम लोग को दिखाया था वेन्स कैसी होती हैं. तो जो लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं या फिर वेन्स कैसी होती है लीफ में. देन डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ. फिर क्या आप लोग को एक लाइन दिख रही है लीफ के जस्ट मिडल में? यस, वी कैन सी that line and that line is called a midrib.
जो मिड रिब होती है उससे ही सारी वेन्स, जितनी भी वेन्स होती हैं वो सारी कनेक्टेड होती हैं, और वो जो मिड रिब होती है वो पेटियोल से कनेक्टेड होती है। यू कैन सी इन द पिक्चर कि पेटियोल से एक स्ट्रेट लाइन आ रही है और फिर उससे साइड वेन्स निकली हुई हैं बहुत सारी, दोनों साइड। After that, the design made by veins in a leaf is called the leaf venation. Now, अब जो डिजाइन जो वेन्स के थ्रू बनता है लीफ पर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? We called it leaf venation. If this design is net like on both sides of midrib, अगर ये डिजाइन net like है, मीन्स एक जाल की तरह लग रही है दोनों साइड्स, मिडरिब के दोनों साइड, तो ये वेनेशन क्या है? रेटिकुलेट। जाल टाइप मीन्स, नेट टाइप मीन्स कि ये सारी ट्यूब्स जितने भी हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और वो पूरा एक नेट का फॉर्म ले रहे हैं। तो दैट इज वाई, अगर वो नेट का फॉर्म ले रहा है तो वो जो लीफ वेनेशन है दैट इज रेटिकुलेट। नाउ you can turn the page number 56 and see the turn and see figure 7.10a. what is this? the leaf है, लीफ के बीच में देखो एक मिडरिब आ रही है और उससे साइड में वेन्स है जो कि क्लियरली शो हो रहा है 7.10a में। और जो नेट स्ट्रक्चर है, जो नेट वाला है, ये हमें स्क्रिबिंग करने पे, जो पेपर पे जो हम लोग इम्प्रेशन लेंगे लीफ का, उससे बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। नाउ आफ्टर दैट in the leaves of grass you might have seen that the veins are parallel to one another and this is parallel veins. कुछ leaves ऐसी होती हैं जिनकी वेन्स जो होती हैं वो एक दूसरे से पैरेलल होती हैं। Parallel means the lines which do not have any intersecting points. Two equal lines which do not have any intersecting points means that वो lines जो किसी भी end पर भी meet ना हो रही हो एक दूसरे से। Now, this you can see in figure 7.10b. It is a leaf of a grass, और ग्रास में क्या है कि जितनी भी वेन्स है वो सब पैरेलल वेन्स है, दैट इज व्हाई दे आर, उसमें पैरेलल वेनेशन है। नाउ ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मेनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट। नाउ यू कैन ऑब्जर्व द वेनेशंस फ्रॉम सो मेनी लीव्स एज यू कैन। हमारे आसपास, तुम्हारे आसपास जितने भी प्लांट्स हैं उन सबके जितने भी प्लांट्स हैं उन सबकी लीव्स क्या है? डिफरेंट है, और इन सब लीव्स में हम लोग जो वेनेशन है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, आइदर ऑफ अ ग्रास, आइदर ऑफ अ रोज प्लांट, मैंगो प्लांट, बनियन ट्री, एनी ऑफ द ट्री, वी कैन सी द वेनेशंस, वी कैन ऑब्जर्व इट। नाउ टर्न पेज नंबर 56. Draw the pattern and write names of some plants having reticulate and parallel venations. Shall we now find out some of the functions of a leaf? Now, अब क्या करते हैं? अब हम लोग फंक्शंस, लीफ के क्या फंक्शंस हैं उसके बारे में फाइंड आउट करते हैं। नाउ एक्टिविटी नंबर 4. This deals with the function of a leaf. Now, we will require a hub, 2 transparent polythene bags and a thread. अब हमें क्या चाहिए? एक हब प्लांट चाहिए और 2 ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग्स चाहिए और थ्रेड चाहिए। Now do this activity during day time on a sunny day. ये एक्टिविटी हमें कब करनी है? दिस एक्टिविटी वी हैव टू डू इन अ सनी डे, डे टाइम में जब धूप निकली हो, सनी हो, तब करनी है। Use a healthy, well-watered plant that has been growing in the sun. और हमें ये नहीं कि हमने एक मुरझाया हुआ पेड़ ले लिया, we have to take a healthy plant, बिल्कुल हरा भरा प्लांट चाहिए हर्ब का। Then enclose a leafy branch of the plant in a polythene cover and tie up its mouth as shown in figure 7.11.
नाउ अब क्या करना है, जो प्लांट के जो लीफी ब्रांच है उसको पॉलिथीन से कवर कर देनी है और फिर उसमें थ्रेड से उसको टाई अप कर देना है। जो पॉलिथीन का जो एंड है उसको हमने जो है थ्रेड से टाई अप कर दिया, जैसे कि वी कैन सी इट्स फिगर 7.11। नाउ टाई अप द माउथ ऑफ द अनदर एम्प्टी पॉलिथीन कवर एंड कीप इट आल्सो इन द सन। अब जो दूसरी एम्प्टी पॉलिथीन थी उसका माउथ भी हमने कवर कर दिया और उसको हमने सन में रख दिया, मीन्स सनलाइट में हमने रख दिया। नाउ आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर्स। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर? डू यू थिंक they got there? Don't forget to remove the polythene bag after the activity. Now कुछ घंटे बाद क्या किया हमने, जो कवर थे, जो पॉलिथीन कवर्स थे, उसका इनर सरफेस हमने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने में हमें क्या मिला, जो एम्प्टी पॉलिथीन थी उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं थी और जो हर प्लांट था जिसका लीफी पार्ट हमने रैप किया हुआ था पॉलिथीन से, तो पॉलिथीन जो कवर था उसके इनर सरफेस में हमने ड्रॉपलेट्स देखी, वाटर ड्रॉपलेट्स हमें मिली। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। नाउ जब हमने ग्रीन लीव्स को हमने कवर करके सनलाइट में रख दिया था, तो तब क्या हुआ, जब लीव्स जो है सनलाइट के कांटेक्ट में आई तो उन्होंने जो है वाटर रिलीज करना स्टार्ट कर दिया और जब वाटर रिलीज करना स्टार्ट किया तो फिर वो धीरे धीरे किसमें चेंज हो गया, वो चेंज हो गया वाटर वेपर्स के फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में चेंज हो गया। तो इसलिए ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ना जो लीव्स जो वाटर को गिव आउट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर, उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। नाउ प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, काफी जो है एक अच्छी खासी अमाउंट में वाटर को रिलीज करते हैं एयर में जब ये प्रोसेस होता है। नाउ ट्रांसपिरेशन का जब प्रोसेस होता है तो वो एयर में जाती है, क्योंकि तब जो प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो पॉलिथीन से कवर्ड नहीं होती हैं। हमें देखना था कि क्या लीव्स क्या करती हैं, दैट्स वाई हमने लीव्स को जो है पॉलिथीन बैग से कवर किया। बट बेसिकली क्या होता है, जो प्लांट्स की जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो ओपन रहती हैं, तो ओपन रहने की वजह से जो सनलाइट होती है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के आने के बाद जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर को गिव आउट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और एक बहुत अच्छी खासी अमाउंट में एट अ गुड अमाउंट वो रिलीज करते हैं। देन वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14। नाउ अब हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चैप्टर 14 में हम लोग इसके बारे में और डिटेल में जाएंगे। नाउ Why did we tie a cover around the leaves? हमने लीव्स के साइड जो है चारों तरफ उसको कवर क्यों किया, लीव्स को ही हमने कवर क्यों किया, हमने स्टेम को क्यों नहीं कवर किया, हमने जो उसमें फ्लावर था, जो फ्रूट था, उसको कवर क्यों नहीं किया। Now would we have seen that the water evaporate if we had not tied a polythene cover? अगर हम लोग पॉलिथीन कवर नहीं करते तो क्या होता, हमें वाटर इवेपोरेट जो हुआ है वो हमें देखने को नहीं मिलता। देन व्हाट मेक्स द वाटर अपीयर ऑन द पॉलिथीन बैग? नाउ अब जो पॉलिथीन बैग पे जो वाटर है वो क्या शो कर रहा है। इन चैप्टर 5 वी नोटिस्ड वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स in some of our activities. Can you think of these and name the process that makes water drops appear on the polythene cover? Now chapter 5 जो कि तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो, उसमें क्या था, तुम लोगों ने बहुत सारे प्रोसेसेस पढ़े जिसमें वाटर के अलग अलग फॉर्म्स थे। तो उसमें से एक प्रोसेस था इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता था, जो वाटर था वो वाटर वेपर्स में
चेंज होता था। तो सेम प्रोसेस इसमें भी है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्लांट्स से जो है वाटर रिलीज हो रहा है, जो वाटर रिलीज हो रहा है हमने पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया था, इसलिए वो पॉलीथीन बैग पे था वाटर ड्रॉपलेट्स। अगर हम लोग कवर नहीं करते तो वो डायरेक्ट एयर में जाते, दैट्स वाई। तो जो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हमें पॉलीथीन बैग पे दिखाई दिए हैं, ये प्रूव करते हैं कि यहाँ पे इवेपोरेशन का प्रोसेस हुआ है। नाउ leaves also have another function, let us study this। और leaves के पास और भी functions है leaves के, जैसे कि we will study in activity number 5। now we would require a leaf, spirit and a beaker, test tube, burner, water, a watch glass and iodine solution for this activity। now हमें क्या क्या चाहिए इस एक्टिविटी के लिए, हमें एक लीफ चाहिए, स्पिरिट चाहिए, बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर चाहिए, वाटर चाहिए, वॉच ग्लास एंड आयोडीन सॉल्यूशन। नाउ क्या हुआ, हमने लीफ को टेस्ट ट्यूब में लिया। टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू कंप्लीटली इमर्स द लीफ। हमने क्या किया, ग्रीन लीफ ली, उसको टेस्ट ट्यूब में रखा और फिर उसमें स्पिरिट डाली, और स्पिरिट इतनी डाली कि वो जो लीफ थी वो पूरी स्पिरिट से कवर हो गई, इमर्स हो गई। Now place the test tube in a beaker half filled with water. Heat the beaker till all the green color of the leaf comes out into the spirit in the test tube. Take out the leaf carefully and wash it in water. Place it on a watch glass and pour some iodine solution over it. Now अब हमने क्या करना है, जो टेस्ट ट्यूब था उसको हमने हाफ फिल्ड वाटर में रख दिया और बीकर को थोड़ा हीट किया। एक तरह से हमें क्या करना था, जो ग्रीन लीफ थी उसको हमें वाटर और स्पिरिट में बॉईल करना था। बॉईल करने के बाद क्या हुआ कि जो लीफ का जो ग्रीन कलर था वो सारा रिमूव हो गया, वो सारा स्पिरिट ने एब्जॉर्ब कर लिया। देन अब उसमें से फिर हमने जो लीफ थी उसको निकाला, और निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि उसको कोल्ड वाटर से हम लोग उसको वॉश कर लेंगे। आफ्टर उसको वॉश करने के बाद उसको एक वॉच ग्लास में रख के उसके ऊपर कुछ we will add some drops of iodine solution। आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स हम लोग लीफ पर एड ऑन करेंगे। देन एज यू कैन सी इन 7.12 what do you observe? Compare your observations with those done in chapter 2 when you tested food for presence of different nutrients. Does this mean that the leaf has starch in it? Now अब हमने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, जैसे ही हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला जो लीफ का कलर था वो चेंज हो गया। और लीफ का कलर चेंज कैसा हो गया, ब्लू ब्लैक कलर में लीफ का कलर हो गया। तो ये क्या, दिस एक्टिविटी प्रूव्स कि जो लीफ है उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड में जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, कि उसमें जो फूड है, जो स्टार्च, जो प्लांट्स का जो फूड होता है, जो ग्लूकोज होता है, जो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, वो फूड में प्रेजेंट रहता है या नहीं। जैसे हमने पोटैटो में किया था, क्या किया था, हमने पोटैटो की स्लाइस ली थी और उसमें आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड किया था। आयोडीन सॉल्यूशन ऐड किया था तो पोटैटो का कलर क्या हो गया था, ब्लैक एंड ब्लू हो गया था। वैसे ही लीफ का कलर भी चेंज हो गया। तो जो कि ये प्रूव कर रहा है कि जो लीफ है उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। Now, in chapter 2, we saw that a slice of a raw potato also shows the presence of starch. Potatoes get this starch from their leaves and store it. Leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green colored substance present in them. For this, they also use water and carbon dioxide. This process is called photosynthesis. Oxygen is given out in this process. The food prepared by leaves ultimately gets stored in different parts of a plant. Now, photosynthesis के process में क्या होता है, जो plants होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और किसके हेल्प से प्रिपेयर करते हैं, लीव्स की हेल्प से।
तो लीव्स क्या करती हैं, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं और वाटर एंड मिनरल्स के साथ कलेक्ट होकर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती हैं, और जो भी फूड प्रिपेयर होता है वो पूरा जो है उसका कुछ पार्ट दे यूज इट फॉर द ग्रोथ एंड द सर्वाइवल ऑफ अ प्लांट, और जो भी रेस्ट पार्ट ऑफ अ फूड होता है वो चेंज हो जाता है स्टार्च में, और स्टार्च में चेंज होने के बाद वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में जाके स्टोर हो जाता है। कुछ पार्ट स्टेम में होता है, कुछ पार्ट लीव्स में होता है, कुछ पार्ट रूट्स में जाता है और कुछ पार्ट फ्रूट्स में रहता है। नाउ आफ्टर दैट, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो लीव्स होती हैं ये प्लांट्स जो होते हैं ये ऑक्सीजन को गिव आउट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं। मीन्स दैट जो एयर में बहुत सारी जो है जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सारी एयर प्रेजेंट होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन, इथेन, मीथेन एंड सो मेनी मोर। सो जितनी भी हार्मफुल गैसेस होती हैं, एज कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट गुड फॉर ब्रीथिंग, ऑक्सीजन इज वेरी गुड फॉर ब्रीथिंग। सो द प्लांट्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन को जो है गिव आउट करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। देन we have seen that the stem supplies leaf with water. The leaf uses the water to make food. Now the leaves also lose water through transpiration. How do the stem and leaves get water? That is where the roots come in. Now हमने पढ़ा कि जो स्टेम होती है वो लीव्स को सप्लाइज लीफ विद वाटर, जो स्टेम होती है वो जो है लीफ को और अदर प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स सप्लाई करती है, और जो लीफ होती है वो क्या करती है, लीफ वाटर यूज करती है फूड बनाने के लिए, और लीव्स क्या करती हैं, और लीव्स जो है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में वाटर को रिलीज भी करती हैं। अब लीव्स और स्टेम में वाटर आता कहाँ से है? नाउ वी विल स्टडी रूट्स। 7.4 look at figure 7.13. why do you think who do you think is watering their plant correctly? पहेली और बूझो why. now 7.3 में क्या है, हम लोग प्लांट्स को वाटरिंग कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि कौन प्लांट्स को करेक्टली वाटरिंग दे रहा है, बूझो या फिर पहेली. which part of the plant is in soil? Let us learn more about this part from the following activities. Now, जो roots होती हैं वो क्या होती हैं, अंडरग्राउंड होती हैं, just they are below the ground. So ये हमें शो नहीं होती हैं. Now we will learn about the roots in activity number 6. You would require 2 pots, some oil, khurpi for digging, blade or a pair of scissors and water. This activity is to be done in groups of 4 to 5 students. Now अब इस एक्टिविटी में हम लोग क्या करेंगे, 4 to 5 स्टूडेंट्स का हम लोग ग्रुप बनाएंगे, ठीक, और हम 2 पॉट्स लेंगे, पॉट ए एंड पॉट डी, और उसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी we will put some soil in both of the pots. After that what we will do, select 2 plants of the same kind from an open ground and dig them out with roots. क्या करना है, हमें एक ही जैसे 2 प्लांट्स को निकालना है और हमें चूज करना है किसी ओपन ग्राउंड से, किसी पार्क से हमने दो प्लांट्स ले लिए सेम काइंड के लेने के बाद हमने क्या किया, उसको रूट्स के साथ मतलब जड़ के साथ हमने उस पेड़ को वहां से निकाल लिया. टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक, और हमें बहुत ही केयरफुली रहना है कि जो रूट्स हैं वो उसके ब्रेक ना हो. Plant one of them in pot A, figure 7.14a. Now हमने जो 2 pots लिए थे A and B, एक प्लांट को हमने क्या किया, रूट के साथ ही प्लांट A में हमने
प्लेस कर दिया, प्लांट कर दिया। और प्लांट बी में हमने क्या किया, कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द, टर्न पेज नंबर 58, द अदर प्लांट एंड प्लांट इट इन पॉट बी। और हमने क्या किया, दूसरा जो पॉट था, पॉट बी, उसमें रूट्स हमने कट करके प्लांट को प्लेस कर दिया। जो दूसरा प्लांट था उसको हमने, उसकी रूट्स कट करके हमने पॉट बी में हमने प्लांट कर दिया। आफ्टर दैट वाटर देम रेगुलरली, और डेली हमने उसमें पानी डाला, डेली हमने उसमें वाटरिंग करी। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक, और एक हफ्ते बाद हमने क्या देखा कि दोनों में से एक प्लांट तो बहुत ही अच्छे से हेल्थली ग्रो हुआ और दूसरा जो प्लांट था वो सूख गया। क्यों हुआ ये? नाउ ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक, आर बोथ प्लांट्स हेल्दी? Both the plants are watered regularly, but one is without roots, isn't it? Does this activity help you understand an important function of the root? Let us do an activity to study another function of a root. तो जो प्लांट ए था वो बहुत ही हेल्थली ग्रो हुआ, और जो प्लांट बी था, जो पॉट बी था, उसमें क्या हुआ, प्लांट सूख गया। विच प्रूव्स दैट जो रूट्स होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि रूट्स वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, जो कि हेल्प करता है प्लांट को ग्रो करने में। अगर रूट्स नहीं होंगी किसी प्लांट की तो वो प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा। नाउ एक्टिविटी नंबर 7, वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन, वूल, कटोरी एंड सम वाटर। नाउ अब हमें एक्टिविटी 7 में क्या करना है, हमने कुछ ग्राम सीड्स लिए, मेज लिए और कॉटन वूल लिया, और उसको हमने एक बाउल में प्लेस कर दिया और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड ऑन कर दिया। व्हाट वी हैव टू डू, टेक 2 कटोरीज, प्लेस सम वेट कॉटन इन देम। हमने क्या किया कि 2 कटोरियां ली और उसमें वेट कॉटन को प्लेस कर दिया। पुट 3 और सीड्स of gram in one and maize in the another. Now अब हमने क्या किया, जो ग्राम सीड्स थे वो एक बाउल में रखे, बाउल ए में रखे, और जो मेज के सीड्स थे वो हमने बाउल बी में रखे। कीप द वाटर वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। और फिर हमने क्या किया, जो कॉटन हमने रखी हुई थी, जो मॉइस्ट कॉटन थी, जो वेट कॉटन जो हमने दोनों बाउल्स में प्लेस करी हुई थी, उसको डेली हम लोग उसमें वाटर स्प्रिंक करते रहे। मीन्स पानी उसमें डेली हम लोग छिड़कते रहे। स्प्रिंकलिंग मीन्स छिड़कना, हम लोग छिड़कते रहे ताकि वो जो कॉटन है वो जो है वेट बनी रहे, उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट रहे। Until the sprouts have grown into young plants, और ये हम लोग तब तक प्रोसेस करते रहे जब तक जो स्प्राउट्स थे वो एक यंग प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो गए। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन। और कुछ टाइम बाद, एक हफ्ते बाद, आफ्टर अ वीक मीन्स आफ्टर 1 वीक, एक हफ्ते बाद हमें क्या करना है, हमें ट्राई करना है जो स्प्राउट्स से जो यंग प्लांट्स निकले थे उसको कॉटन से अलग करने में। क्या वो होंगे? नहीं होंगे। वॉज इट इजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स? वाई? In activity 6, we could not pull out the plant from the soil. Right, we dug them out. This is because roots help in holding the plant firmly to the soil. They anchor the plant to the soil. क्या हुआ, जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, प्लांट को फिक्स करती हैं सॉइल में। अगर रूट्स नहीं होंगे तो प्लांट फिक्स नहीं हो पाएगा। फिक्स होने का मतलब है जो सॉइल होती है वो रूट्स में ही फंस जाती है, जिसकी वजह से जो प्लांट होता है वो फिक्स हो जाता है। तो ये बहुत ही इजी नहीं होता है कि हम लोग रूट्स को जो है सॉइल से इजी कर पाए। इसी तरह से हम लोग जो एक्टिविटी हमने की थी इसमें भी हम लोग कॉटन से जो यंग प्लांट्स के उनको रिमूव नहीं कर पा रहे थे। So this is because roots help in holding the plant firmly to the soil. ये क्यों हुआ? Because जो roots होती हैं ये help करती हैं प्लांट को होल्ड करने में, उसको फिक्स करने में soil में। You have seen that there are different kind of stems and leaves.
डू द रूट्स शो अ वैरायटी? लेट अस फाइंड। हमने देखा कि जो स्टेम होती है और जो लीफ होती है उनकी बहुत सारी वैरायटीज होती है। वो डिफरेंट शेप के होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं। पर क्या रूट्स के साथ भी ऐसे ही होता है? क्या रूट्स भी डिफरेंट साइज और शेप की होती है? नाउ लेट अस स्टडी इन एक्टिविटी नंबर 8. Activity number 8 deals with the different shape and size of a root. Now, study figures 7.16a and b carefully. Now, look at the roots of the gram plants you have pulled out from the cotton in the previous activity. Do they look like the roots shown in figure 7.16a or those in 7.16b? How the roots of maize plant, write gram or maize in the blank spaces in the figure after matching the roots with the figures. Now हमें क्या करना है? हमने जो है ग्राम प्लांट लिया, जो कि हमने प्रीवियस एक्टिविटी में हमने ग्राम और मेज लिए हुए थे। हमने लास्ट एक्टिविटी जो थी हमने उसमें हमने सीड और हमने ग्राम और मेज का सीड हमने यूज किया था। तो उन्हीं दोनों सीड्स को हमने लिया और हमें ये ऑब्जर्व क्या करना था कि क्या ग्राम और मेज दोनों के जो रूट्स हैं वो सेम है या फिर डिफरेंट है। Now, in what way are the roots of gram and maize similar? In what way are they different? They seem to be two different types of roots, isn't it? There are also other types of roots. Let us find out. क्या दोनों सेम है? सेम है तो कैसे सेम है? अगर डिफरेंट हो तो कैसे डिफरेंट है? Now, let us study activity number 9. This will be clear in activity number 9. What it is shown? Go to an open ground where many wild plants are growing. Dig out a few, wash the soil of the roots and observe them. Do you find that all of them have either the kind of roots shown in figure 7.17a or as in figure 7.17b? अब हमें एक्टिविटी नंबर में क्या करना है? एक्टिविटी नंबर में हम लोग एक पार्क में गए एक्टिविटी नंबर 9 में, और वहां पे हमने देखा कि बहुत सारे वाइल्ड प्लांट्स मीन्स जंगली पेड़ हैं जो कि ग्रो हो गए हैं। हमने क्या किया? हमने उनमें से कुछ प्लांट्स को डिग आउट कर लिया, मीन्स खोद लिया, और खोदने के बाद हम जो उसकी रूट्स थी उनको बहुत वॉश करके बिल्कुल जो सॉइल थी उसको क्लियर कर दिया। रूट्स को हमने क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद हमने क्या देखा कि जो प्लांट्स हमने डिग आउट किए थे क्या उन सबकी रूट्स सेम थी या फिर वैसी थी जैसी फिगर 7.1.7a और b में दिखाया हुआ है। ओके, नाउ सी पेज नंबर 59. Now, for roots of the kind shown in figure 7.17a, the main root is called taproot. जो रूट जिस तरह की रूट हम 7.17a में देख रहे हैं उस रूट को हम लोग कहते हैं टैप रूट, और जो स्मॉलर रूट्स होती हैं उनको हम लोग कहते हैं लैटरल रूट. Then plants with roots as shown in figure 7.17b do not have main root. All roots seem similar and these are called fibrous roots. जैसे कि हम लोग 7.1.7b में हम लोग रूट्स देख रहे हैं, उसमें क्या होता है कि कोई एक मेन रूट नहीं होती है, उसमें बहुत सारी रूट्स निकली हुई हैं जो कि एक जैसी दिखती हैं, तो वो सारी उन रूट्स को हम लोग कहते हैं फाइब्रस रूट्स. बट जो रूट हम 7.17a में देख रहे हैं उसमें क्या है कि एक स्टेम है, स्टेम से फिर एक मेन रूट आई हुई है, मेन रूट से फिर छोटी स्मॉल रूट्स निकली हुई हैं. तो जो मेन रूट होती है उसको हम लोग टैप रूट कहते हैं और जो स्मॉलर रूट्स होती हैं उसको हम लोग लैटरल रूट्स कहते हैं. Then separate the plants you have collected into two groups.
In group A, put those that have tap roots, and in group B, those that have fibrous roots. Look at the leaves of the plants in group. What kind of venation do you have? Do they have? What kind of venation do you see for plants of group B? Now, अब हमने क्या किया, हमने बहुत सारे प्लांट्स डिग आउट किए थे और सबकी रूट्स अलग अलग थी, कुछ की टैप रूट्स थी और कुछ की फाइब्रस रूट्स थी. तो हमने क्या करना है, हमें उन रूट्स को 2 पार्ट्स में या 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. ग्रुप ए में हमें रखनी है टैप रूट्स जिनमें मेन रूट है और लैटरल रूट्स है, और ग्रुप बी में हमें फाइब्रस रूट्स वाली प्लांट्स को प्लेस करना है. फिर हमें ऑब्जर्व करना है उसमें कि किस तरह का वेरिएशन हमें मिल रहा है. Do you notice that leaf variation and type of fruits in a plant are related in a very interesting way? In table 7.2, can you match the type of leaf variation and the type of fruits for same plants you have studied in all the activities so far? We have learned that roots absorb water and minerals from the soil, and the stem conducts these to leaves and other parts of the plant. In the leaves prepare food. This food travels through the stem and is stored in different parts of plant. We eat some of these as roots like carrot, radish, sweet potato, turnip and tapioca. We also eat many other parts of a plant where food is stored. Now, अब हमने सेपरेशन कर लिया ग्रुप ए और ग्रुप बी में. उसके बाद हमने नोटिस किया लीफ विनेशन को. लीफ विनेशन को जब हमने किया तो उसमें और टाइप ऑफ रूट्स भी हमने उसमें स्टडी किए. तो क्या हुआ कि कुछ के सेम थे और कुछ के डिफरेंट थे. उसके बाद फिर हमने क्या लर्न किया, हमने लर्न किया कि जो रूट्स होती हैं वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि रूट्स का काम क्या होता है. रूट्स वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं और फिर वो स्टेम के थ्रू लीव्स तक की और अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट तक की वो पहुंचाती हैं, कैरी आउट करती हैं. देन फिर क्या होता है, फिर जो लीव्स होती हैं वो फूड को प्रिपेयर करती हैं. This food travels through the stem and is stored in different parts of a plant. फिर जो फूड होता है जो प्लांट प्रिपेयर करती है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में कैरी आउट होता है. ऐसा नहीं है कि जो लीव्स ने जो फूड प्रिपेयर किया है वो एक ही जगह पे स्टोर रहे, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में स्टोर हो जाता है. और उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम लोग ईट करते हैं. कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जिनको हम लोग खाते हैं, जैसे कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टपोइका. ये क्यों? बिकॉज दीज ऑल आर रूट्स विच ग्रो अंडरग्राउंड. ओके. आफ्टर दैट वी ऑल्सो ईट मेनी अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट where food is stored. इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारे जो है चीज़ें खाते हैं. प्लांट की बहुत सारे प्लांट के पार्ट्स हम लोग ईट करते हैं जहाँ पे स्टार्च और फूड जो है प्रेजेंट होता है. स्टार्च इज अ बिगर यूनिट ऑफ अ शुगर प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट और अ ग्लूकोज. Bigger unit of a glucose or a sugar which is prepared by a plant. Do you agree that stem is like a street with two-way traffic? Write the name of material that goes up in the stem and which comes down. Now, क्या ऐसा नहीं है कि जो स्टेम है ये स्ट्रीट लाइक ट्रैफिक की तरह है कि कुछ चीजें आ भी रही हैं और कुछ चीजें जा भी नहीं है. Okay, it is a two-way communication we can say. Okay, then in the next section we will study about the structure of a flower. Now in our next class we will study about flowers. So your homework is to revise the taught portion.
Thank you, class.